यहाँ इन्होंने इतना खौफ और हरासा फैला के, डरा के, डंडे मार मार के लोगों को समझ रहे कि कंट्रोल कर लेंगे। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूँ ईस्ट पाकिस्तान का कि आज़ादी की यह जंग अब रुकने वाली नहीं है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का अब से कुछ देर पहले एक ऐसा खिताब मैंने सुना जिसके बारे में जितना तबसरा करना चाहें किया जा सकता है। मैंने उनकी कोई 1000 से ज़ायद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, खिताब, उनके धरनों में की जाने वाली तकरीरें और बहुत कुछ सुन रखा है, बराह रास्त भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, और बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। लेकिन जो खिताब उन्होंने अब से कुछ देर पहले कर दिया है, इसके क्या असरात होंगे और किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाएगा, मुझे एग्जैक्ट अभी सही से समझ नहीं आ रही कि इस पर किस किस्म का तबसरा और कैसे किया जाना चाहिए। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেশ বা দেশের বাইরে যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সকলকে অনুরোধ করব দয়া করে পুরো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তানে তো রীতিমতো তোলপাড় আপনারা দেখতেই পারছেন। ইমরান খানকে গ্রেপ্তার নিয়ে নানা ধরনের জিনিসপত্র ভাঙচুর, মানে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে। পিটিআই নেতাকর্মী বর্তমান পাকিস্তানের দলীয় সরকারের বা ক্ষমতাধীন সরকারের নেতাকর্মীদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ, ধাওয়া পাল্টা দেওয়া সৃষ্টি হয়েছে, আপনারা সেটা দেখেছেন। অবশেষে পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খানকে মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে। প্রধান বিচারক এবং সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে কিন্তু, নির্দেশে কিন্তু ইসলামাবাদের হাইকোর্ট 2 সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করেছে ইমরান খানের। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, অবশেষে ইমরান খান তার গ্রেপ্তার বিষয়ে আজকে মুক্তির একদিন পর তিনি পিটিআই নেতাকর্মীদেরকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সমাবেশের ডাক দিয়েছে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, ইমরান খান বলেছে তার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, যে বিহেভিয়ার করা হয়েছে, সেটা আসলে কখনো তিনি প্রত্যাশা করেননি তার সঙ্গে এরকম আচরণটা করা হবে। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের সবথেকে বড় বিরোধী দলের প্রধান। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, তার সঙ্গে এভাবে এরকম আচরণ করা হবে, দেশদ্রোহীর মতো তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে হাইকোর্ট থেকে, এটা কখনো তিনি আশা করেনি। তবে ইমরান খান শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, তার গ্রেপ্তারের জন্য নয়। তিনি বলছে যে বর্তমান যে সরকার রয়েছে শেহবাজ শরীফ, সেই শেহবাজ শরীফ পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। একের পর এক বিদেশি হুকুমতে সে দেশের মানুষের ওপরে নানা ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন চালাচ্ছে, সেটা কোনোভাবেই হতে দেওয়া যাবে না। ইমরান খান কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়ে শেহবাজ শরীফকে কিছু কথা বলেছে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা দেখে আসি ইমরান খান তার নেতাকর্মী পিটিআই কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বলল এবং ইমরান খান শেহবাজ শরীফকে কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়ে কি বলল। প্রিয় দর্শক, আশা করি সঙ্গে থাকবেন পুরো ভিডিওটা জুড়ে। जब पब्लिक का रिएक्शन आया तो ये पब्लिक का रिएक्शन इससे बहुत ज़्यादा आना था। जहाँ तक मुझे पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वहाँ तो हमने कुछ नहीं ना किया, वहाँ तो हमारा कोई पीटीआई का वर्कर नहीं था। आप देखें कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सबसे बड़ा असासा है इस मुल्क का, जिसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान उठेगा, हमें कोई IMF नहीं उठाएगा, कोई जो हमारे दोस्त मुल्क है उनसे भीख मांग के नहीं, ये उठाएंगे हमें। इनका रिएक्शन देखिए कैसा है, एकदम निकले हैं वो लोग। और वो क्यों निकले हैं? क्योंकि वहाँ उनको पता है कि ऐसी हरकतें जमहूरियत में नहीं होती, आज़ाद मुल्कों में ऐसी हरकतें नहीं होती। वो बाहर बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ मगरब में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पराए मुल्क हैं, उनको इस मुल्क से ज़्यादा आज़ादी है, वहाँ वो ज़्यादा आज़ाद हैं क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, उनके हकूक़ की हिफाजत करते हैं वहाँ के कानून और उनकी अदलिया। वो आज़ाद लोग हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। यहाँ इन्होंने इतना खौफ और हरासा फैला के, डरा के, डंडे मार मार के लोगों को समझ रहे कि कंट्रोल कर लेंगे। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूँ ईस्ट पाकिस्तान का। मेरी ज़िंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहाँ मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर-19 के ख़िलाफ़। हमारा जो जहाज़ वापस आया था वो आखिरी जहाज़ था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफ़रत हो गई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमें तो यह पता ही नहीं था। इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फ़र्क यह है कि आज सोशल मीडिया है और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया। इस दौरान
क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर पसंद और बताना चाहते थे, इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। फेसबुक, ट्विटर, मुल्क को कितना नुकसान हुआ सिर्फ इसलिए कि जनाब इमरान खान को पकड़ना था, तो वो रिएक्शन इन्होंने नहीं दिखाना था कि उसका रिएक्शन क्या है। तो ईस्ट पाकिस्तान में यही हुआ था। हमें यहाँ कंट्रोल्ड मीडिया, पाकिस्तान टाइम्स, हमें यहाँ पीटीवी था। वो मैं तो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, उधर मुझे पता चला वहाँ क्या हुआ है। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए, 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया ही नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। मुल्क कैसे नहीं चलते। और मैं जरा ISPR साहब, जरा थोड़ा सा आपने कोई पीछे, मैं जब जेल में था तो बातें की, मैं उनके कोई जवाब देना चाहता हूं आपको। देखें, आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी ज़रा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे, तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, ज़रा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में, कि हमारा क्या जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखें, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ। जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? या तो कोई सांप सूंघ गया था, या तो आर्मी चीफ के मुंह से चून ही निकल रही थी, या तो कोई बोलता ही नहीं था। ना प्राइम मिनिस्टर तब वो गिलानी था, ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था, मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया है। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था। जरा उठा के देखें, आपके सामने है वो। क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से? क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं।
कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील की है तो फलानी प्रॉपर्टीज, हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इससे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज हैं। और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े सराब उधर चले जाएं और उसको कह के जी बड़ा अब बहुत अच्छा किया और अब इमरान खान बुरा ये अच्छे है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया, मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को। जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इस मुल्क इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमेरिकनों को नहीं कहा था जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे, उन्होंने कहा जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमेरिकनों को कह रहा है। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के मुलाकात कर रहे हैं कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, और उससे वो जो डॉन लीग्स में जब वो कहता है डॉन लीग्स कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहा है हिंदुस्तान को ओपिनियन कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहें कि हम इन सारों को तस्लीम कर लें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो हमें जेलों में डाल दें, हम प्रोटेस्ट करें हमारे ऊपर FIR काट दें, हम कुछ करें आप एंटी स्टेट हमें करार दे दें, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे गोलियां लगी हैं, मुझे पता है किसने कौन जिम्मेदार है। मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मुझे यह हक नहीं मिला कि मैं अपनी FIR कटवा सकूं। ISPR फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। भैया आप हैं कौन कहने वाले? ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आइन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है FIR कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि जी वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम। और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इमरान खान को 50 साल ये कौम जानती है। इस कौम की तारीख में अगर किसी एक आदमी को इस कौम ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है, जो सबसे ज़्यादा खैराती काम, वो इमरान खान कर रहा है। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो दयानतदार आदमी है, वो चोरी नहीं करता पैसे, वो सच बोलता है। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है। आपको किसने इजाज़त दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। और मैं उसके अलावा मैं आखिर में कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा है इस चीज़ के ऊपर कि इस तरह के इल्ज़ाम लगाने, और आपको पता ही नहीं आप बात क्या कर रहे हैं, और उस आदमी पर लगा रहे हैं जिसको हमेशा वो चाहता है कि उसकी फ़ौज मजबूत हो। और मैं आपको ये बताऊँ, मैं ड्रामे नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पैसे मुल्क से बाहर नहीं पड़े हुए हैं। मैंने भाग के, मेरे ऊपर 145 केसेस से मुल्क छोड़ के बाहर नहीं भागा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ECL पे ना डालना, कि मैं डालो मुझे ECL पे, मैं जाना नहीं चाहता मुल्क से बाहर। और मैं ये आपको दूसरी बात बता दूं, वो लोग जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, जिनके साथ आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं, अब जब रुपया 300 क्रॉस कर गया डॉलर, तो उनको क्या फ़ायदा, नुकसान हुआ है? उनकी तो दौलत डॉलर्स में पड़ी हुई है, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन सारा तनख्वाहदार तबका, पुलिस, सरकारी नौकर, हमारे फौजी, सारों को आज उनके घरों में पूछें कि उनके ऊपर क्या हालात है। पूछें ना ज़रा, उनकी बीवियाँ बेचारी जो बेचारी देख रही हैं कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उनकी जो, जब बाजवा ने हमारी गवर्नमेंट गिराई थी तो जो 100 रुपया था वो आज सिर्फ मुश्किल से 55-60 रुपया खरीद सकता है। उसकी कीमत सिर्फ 55 से 60 रुपये, और अब रुपया और गिरा है तो अब और नीचे चली जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी। कौन जिम्मेदार है इसका? इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। आज जिस आदमी ने साजिश करके गिराया वो जिम्मेदार है। और अगर आप में बर्दाश्त हो तनकीद की, क्योंकि तनकीद से इस्लाहत
एक माशरे से, अदारे से, एक इंसान आप तनकीद ख़त्म कर दें, वो मर जाता है। सोवियत यूनियन क्यों टूटी? क्योंकि वहाँ तनकीद ख़त्म थी। वहाँ भी इसी तरह के, जिस तरह आप आज कर हरकतें कर रहे हैं कि जो मुंह खोलता है उसके ऊपर पड़ जाते हैं, वहाँ भी यही हो रहा है, हो रहा था, वो टूट गया। जो भी माशरा आगे बढ़ता है उसके अंदर तनकीद की इजाज़त होती है। हम अपने बच्चों की तनकीद करते हैं, ये मैं दोगला नहीं हूँ। अगर मैं अपने बच्चों की तनकीद, मैं उनसे प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से उनकी इस्लाह के लिए तनकीद करता हूँ। ये कोई फ़िरौनियत ही नहीं है कि आप, हमारी ज़रूरत नहीं, हम कोई आपकी कमी है कि हम तनकीद नहीं कर सकते, कि हम तनकीद करेंगे तो जनाब हम अब एंटी स्टेट हो गए, गद्दारी का पर्चा हो गया। और देखें हो क्या रहा है, ये जो हुआ है, कान खोलें अपने और आंखें खोलें, ये मुल्क किधर जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है। इस वक्त है आपका कि अंदर से इस्लाह हो। ये डंडे मार के और ये हमें सारे पकड़ दकड़ से कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि इसी तरह का क्रैकडाउन ईस्ट पाकिस्तान में था, कुछ नहीं हुआ। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को डंडे मार के और जेलों में डाल के नहीं ख़त्म कर सकता। सो मेरी अगर आपकी सुननी तो नहीं है आपने, लेकिन मेरे ख्याल में कि आपको इस वक्त आपस में एक बड़ा सर्कल रखना चाहिए, छोटे से बंद कमरों से बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि मुल्क तेज़ी से जो तबाही की तरफ जा रहा है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। मेरी तजवीज़ें आप सुन लें, मैं अपनी कौम के लिए कौम से बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कौम ने अब फैसला कर लिया, हम ये ग़ुलामी कबूल नहीं करते। जो कौम निकली है, मैं उन शर पसंद की नहीं बात कर रहा जो मेरे ख्याल में जान के अंदर डाले गए हैं, और इंशाल्लाह ये होगी जब भी तहकीकात, तो ये सामने आ जाएगा। क्योंकि या तो हमारी तारीख होती ना कि हम ये इस तरह के गोलियां चला रहे होते या कुछ कर रहे होते, जला घराव कर रहे होते, तो उसकी तो 27 साल में तारीख होनी चाहिए थी। ये एकदम क्या हुआ है? और अगर मैं जेल में ना होता तो मैं एकदम एक्शन लेता इसके ऊपर। मुझे अंदर बंद कर दिया, 4 दिन के बाद कर दिए, मेरे ऊपर ही पर्चे कर दिए कि जनाब इमरान खान के कहने के ऊपर सब कुछ हुआ। तो पहले क्यों नहीं हुआ इमरान खान के कहने? तो मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूँ, ये देखिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने हर सूरत अपने आप को आज़ाद करना है। ये जो ग़ुलामी की ज़िंदगी है, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ये जिस ज़िंदगी के अंदर, यानी जिस ज़िंदगी के अंदर आपकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, आपके कोई हकूक़ ही नहीं है, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर सकता है, जुल्म हमारे पे करता है, केसेस ही हमारे पे कर देता है। अब सारे केसेस हमारे पे हो गए। ये लोग कौन मरे हैं, खैर मुझे तो अभी तक पता नहीं, कई दर्जनों लोग बेचारे शहीद हुए हैं और कोई किसी के पास हथियार नहीं था जिसको शहीद किया। तो एक तो मैं ये भी आज कह दूं कि हर जो भी, मैं अपनी सारी पार्टी को कह रहा हूं कि सब ने जो इनके घरों में जाना है, जिनको गोलियां लगी, जो शहीद हुए, इन सब के घरों में जाना है। मैं इंशाल्लाह इनके लिए पैसे इकट्ठे करूंगा। हमने इन सब के लिए, हम इनके घर वालों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब जो मैं जानता हूं निकले हकीकी आज़ादी के लिए। मैं शर पसंद को नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि जिन्होंने, और फिर से मैं कहता हूं तहकीकात करवानी चाहिए कि कैसे वहां से, उधर से लिबर्टी चौक से सारा रास्ता गए हैं कोर कमांडर के घर, क्यों नहीं किसी ने रोका उनको? और थोड़े से लोग थे, मुझे जो बताया इतने लोग भी नहीं थे। ये प्लान था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं नहीं अभी कह सकता, मुझे खदशा है क्योंकि हमने पहले कभी नहीं किया। तो मैं सबसे पहले अपनी सारी कौम को अब ये कहना चाहता हूं कि कल 5:30 बजे, ये बड़ा गौर से सुनना है मेरी बात, आप कल 5:30 बजे आपने, और मैं ख़ास तौर पे अपनी आप ख़वातीन को कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो असल नज़र आ रहा है कि घरों के अंदर इनकलाब आ गया। हमारी ख़वातीन समझ बैठी हैं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और शायद क्योंकि उनका घर का वो देख रही है कि कितने पैसे में कितना सौदा आता है, वो एक तो वो तबाही 1 साल में जो हुआ है, लेकिन वैसे भी इनकलाब हमेशा यूथ और ख़वातीन लेके आती है। तो मैं अपनी ख़वातीन को कहना चाहता हूँ और अपने बुज़ुर्गों को कि आपने सिर्फ मेरी आज गौर से बात सुनी, अपने घर से अपने बाहर निकलना है। आपकी गली के आखिर में जो, या आपकी गांव या गली के आखिर में
आपने सिर्फ निकल के एक अपने हाथ से लिख के एक प्लेकार्ड जिसमें होना चाहिए हकीकी आज़ादी, ऊपर हकीकी आज़ादी और नीचे आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ। क्योंकि आइन होता है तो अगर आइन होगा तो मुल्क भी होगा और आज़ादी भी होगी। तो ये आपने सिर्फ हकीकी आज़ादी, आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ एक प्लेकार्ड पर रखे, आपने सिर्फ अपनी गली से निकल के खड़े हो जाना है। 1 घंटे के लिए मेरे लिए, अपने मुल्क के लिए 5:30 से 6:30 तक आपने निकलना है। कल आज़ादी कभी भी आसानी से नहीं मिलती, आज़ादी छीननी पड़ती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये है आज़ादी की हमारी जद्दोजहद, ये जहाद है। मैं ये चाहता हूँ कि एक तो आपने कल बहुत ज़रूरी निकलना है, बताना है कि जिंदा कौम है, हम आज़ादी चाहते हैं। सिर्फ अपनी गली से बाहर, अपने गांव से जिधर भी हैं, निकल के जमा होके इकट्ठे खड़े होके प्लेकार्ड्स में कहना है हकीकी आज़ादी, आइन बचाओ मुल्क बचाओ। दूसरी चीज़ कि मैं ये अब चाहता हूँ सारों से, सबको, अब मैं सबको कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले अपने पुलिस वालों को कह रहा हूँ कि देखिए आगे से जो पुलिस के अफसरान हैं, इनको जब पैगाम आता है ना, वो जी चिड़ियाघर से या पारा से प्लान आ गया कि जी आपने ये, थोड़ा सा ज़रा खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करें। रिस्क अल्लाह के हाथ में, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता। जब ये आपको नाजायज काम के लिए हैंडलर्स कॉल करते हैं, इनको कहें मैं नहीं करूंगा, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है उसके अलावा, ये हैंडलर्स कोई खुदा नहीं है, ये डरा के धमका के जो आपसे काम करो, कह मैं नहीं करता। मैं अपने जजेस और ख़ास तौर पे मैं आज सलाम करता हूँ अपनी जुडिशरी को कि हमें सब उम्मीद उधर सी है। मुझे पता है जजेस के ऊपर कितना प्रेशर डाल ये हैंडलर्स, ना मालूम नंबर से टेलीफोन या कोई फाइल पकड़ा दीजिए कि टेप कोई रख लिया, ये कुछ कर दिया। पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज़ादी की यह जंग अब रुकने वाली नहीं है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का अब से कुछ देर पहले एक ऐसा खिताब मैंने सुना जिसके बारे में जितना तबसरा करना चाहें किया जा सकता है। मैंने उनकी कोई 1000 से ज़ायद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, खिताब, उनके धरनों में की जाने वाली तकरीरें और बहुत कुछ सुन रखा है, बराह रास्त भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, और बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। लेकिन जो खिताब उन्होंने अब से कुछ देर पहले कर दिया है, इसके क्या असरात होंगे और किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाएगा, मुझे एग्जैक्ट अभी सही से समझ नहीं आ रही कि इस पर किस किस्म का तबसरा और कैसे किया जाना चाहिए। बट जज्बात की तर्जुमानी के लिए वो फायर इमोजीज़ होते हैं ना, वो 4-5 आप लगा लें तो समझ जाए, बल्कि 4-5 नहीं, उसको मल्टीप्लाई कर दें। बहुत लिट किस्म का खिताब था इमरान खान का, और जिस तरह से उन्होंने शुरू किया तो मुझे लग रहा था कि शायद आज का खिताब थोड़ा एग्रेसिव नहीं होगा, थोड़ा धीमे लहजे में रहेगा। और उसकी रीज़न ये है कि हम कुछ कोलीग्स आपस में ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से जब निकले, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं और वापस पुलिस लाइन चले जाएं, उनको भेजा गया। मैंने वो फुटेजेस रिकॉर्ड की खुद, कोई तकरीबन शाम 6 बजे के करीब का वक्त था जब पूरी सिक्योरिटी में इमरान खान को निकाला गया और वो वहाँ पर पहुँचे, पुलिस लाइन की जो बिल्डिंग थी वहाँ पर। तो जो रिपोर्ट किया टीवी चैनल्स पर वो ये था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से निकले और वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन वो उस वक्त वहाँ पर नहीं पहुँचे रिपोर्टेडली। और जो वहाँ पर ऑन ग्राउंड लोग मौजूद थे वो ये बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान रात 11 बजे एंटर हुए, और फिर कुछ तस्वीर भी हमें मौसूल हुई वहाँ पर मौजूद लोगों के ज़रिए। लेकिन इस दौरान इमरान खान कहाँ पर थे, इसके ऊपर ना तो डिस्कशन हो रही है और ना ही किसी के पास कोई एविडेंस है, और ना ही ये 100% कन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये 1 नहीं, 2 नहीं, 4-5 अलग अलग डिफरेंट और बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से ये बात सामने आई है कि इमरान खान 7 बजे जब सुप्रीम कोर्ट से निकले तो डायरेक्ट नहीं पहुंचे। तो लग ये रहा था कि शायद कहीं और गए हैं, कोई और मुलाकात हुई है और अब उसके नतीजे में मामला कुछ बेहतर होंगे। लेकिन जो इमरान खान ने अब खिताब कर दिया है, उसके बाद क्या होने वाला है इस मुल्क में, आपको धुआंधार किस्म की तकारीर सुनने को शायद मिलेंगी। रद्द-ए-अमल भी आएगा, पीडीएम के तर्जुमानों की शामत आने वाली है, क्योंकि सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगी, एक के बाद एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब VPN यूज़ करके एक और ट्वीट करें, हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान अपना रद्द-ए-अमल कुछ देर में दे दें, हो सकता है कोई और ट्वीट भी आ जाए, कहीं और से रद्द-ए-अमल भी आ जाए। लेकिन
इमरान खान ने अपने फैसले का ऐलान कर दिया है और अब सही मानों में ऐसा लग रहा है कि जैसे कश्तियां जलाकर निकल चुके हैं और डू एंड डाई वाली सिचुएशन, जैसे इमरान खान अक्सर अपने खिताब में जो बात कहते हैं ना, ये डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, आइदर दिस वे और दैट वे, बहुत थिन लाइन का फ़र्क रह गया। आज उन्होंने ये बात अपने खिताब में तो नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने खिताब में की जाने वाली दूसरी बातों से कौम को ये बता दिया है कि अब कोई रास्ता वापस पीछे मुड़ने का तो नहीं है, कोई मुफाहमत की चीज़ अब नज़र नहीं आ रही। अब पावर टॉक्स टू पावर वाली सिचुएशन है और इमरान खान का कल जिस तरह से लाहौरियों ने इस्तकबाल किया है, जिस तरह से आवाम घरों से बाहर निकली है, ना तो कोई पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के निकला था, ना कोई नेशनल टीम कोई आलमी एजाज़ जीत कर निकली थी कि लोग सड़कों के ऊपर आगे आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरह से लोग रोते हुए इमरान खान को रिसीव कर रहे थे, वो एक लड़की की वीडियो आपने देखी होगी, रो रही है और साथ में इमरान खान का काफ़िला आ रहा है, वो दिखा रही है। तो जिस किस्म के मनाजर इमरान खान की रिहाई के बाद नज़र आए हैं, और रिहाई के बाद ये उनका पहला खिताब था। इंटरनेट की बंदिश भी अभी तक शायद बरकरार है, कुछ वेबसाइट्स, ट्विटर, फेसबुक अभी तक बंद किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को शायद अंदाज़ा था कि इमरान खान की रिहाई के बाद ऐसे विजुअल सामने आएंगे, ऐसे मनाजर सामने आएंगे जिनसे डील करना शायद मुश्किल होगा। वो शायद ऐसे मनाजर होंगे जिनको मिटाया नहीं जा सकेगा, हटाया नहीं जा सकेगा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब VPN यूज़ करके ट्वीट कर सकते हैं, तो फिर पब्लिक VPN क्यों नहीं यूज़ कर सकती? तो जिस तरह कल रात 3 बजे के बाद या 2:30-3 बजे के बाद इमरान खान को रिसेप्शन मिला है, उसने इमरान खान को शायद और स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का जेस्चर था ये वाला, उसने पूरी PTI के लोगों को, या जितने उनके फॉलोअर्स थे, उनमें एक नया किस्म का जोश पैदा किया। जो थोड़े से डिप्रेस थे उनको एक नई जैसे लाइफलाइन मिल गई हो इमरान खान के खाली एक जेस्चर से। और इसी तरह जैसे इमरान खान लाहौर पहुंचे हैं, तो जो लाहौरियों का या आम पाकिस्तानियों का जेस्चर था, उससे शायद इमरान खान को एक और ज़्यादा हौसला मिला, और ज़्यादा मजबूती के साथ वो खड़े हुए। तो अनब्रेकेबल इमरान खान है, फियरलेस इमरान खान नज़र आ रहे हैं, और पहले से ज़्यादा मजबूत कह लीजिए, ख़तरनाक कह लीजिए, ना झुकने वाले कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। बट इमरान खान इज़ मेकिंग हिस्ट्री इन पाकिस्तान। वो हिस्ट्री का हवाला भी देते हुए बता रहे हैं कि माजी में ये सब कुछ हो चुका, उससे सबक सीख लो। लेकिन नहीं, आज इमरान खान ने अपने खिताब में कुछ अहम ऐलानात भी किए हैं। सिलसिला जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू भी होने वाला है। क्या करने जा रहे हैं इमरान खान, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कल शाम 5:30 बजे का एक बार फिर वक्त दे दिया उन्होंने आप पाकिस्तानियों को, और इमरान खान ने कहा है मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए 5:30 बजे घरों से बाहर निकल आएँ। आप गली मोहल्ले में किसी भी जगह रहते हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने ख़वातीन को मुखातिब करते हुए कहा है और आम पब्लिक को मुखातिब करते हुए कहा कि जहाँ पे भी रहते हैं, खाली आप अपनी गली की नुक्कड़ पे चले जाएं, अपने मोहल्ले की नुक्कड़ पे चले जाएं, किसी भी जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं, एक सर्टन जगह पे चले जाएं और अपने हाथों से प्ले कार्ड लिखें। और उन प्ले कार्ड्स के ऊपर क्या होना चाहिए उस बारे में भी इमरान खान ने बता दिया है। हकीकी आज़ादी ये अपने हाथों से लिख के लाएँ, और साथ में आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ। आपको इमरान खान के पूरे खिताब का कौन सा हिस्सा पसंद आया? वो जिसमें वो बिल्कुल अग्रेसिव मूड में चले गए, वो 5th 6th गियर ही उन्होंने लगा दिया, और जिस तरह से उन्होंने अपना एक एंगर या गुस्से का इजहार किया, और बहुत ही ऐसे अल्फाज में किया जिसको सुनकर ही लग रहा था कि इमरान खान क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने आज के खिताब में एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दिया, एक लाइन जैसे ड्रॉ कर दी। उन्होंने कहा अगर आपको कोई कहता है कि मेरे नाम के ऊपर कांटा लगाया है, स्टिल कहो कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ, स्टिल इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ। उस्मान डार से आज मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वालदा इतनी जज्बाती हुई थी जो पुलिस एहलकारों ने उनके साथ किया, जिस तरह से ज़दोकोब किया, तो कह रहे मैं बड़ा अंदर से एकदम ऐसा मुझे लगा कि मेरी माँ के साथ ये हुआ तो मैं टूट गया एकदम से। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা দেখলেন যে ইমরান খান তিনি কি বলছেন। শেহবাজ শরীফকে কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বর্তমান সরকারকে নিয়ে তিনি কি বললেন। বিশেষ করে ইমরান খানের ক্ষোভ রয়েছে সেনা প্রধানের প্রতি এবং সেনাবাহিনীর প্রতি। ইমরান খানের একটা ক্ষোভ বিরাজ করছে সে শুরু থেকে। ইমরান খান যখন ক্ষমতা ছাড়ে তখন কিন্তু সেনাবাহিনীর কারণেই কিন্তু ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছিল ইমরান খানকে। এবং ইমরান খানের দাবি শেহবাজ শরীফ সে সেনাবাহিনীকে প্রশ্রয় দিয়ে সেনাবাহিনীর কারণেই ক্ষমতায় টিকে আছে, নাহলে 1 মিনিটও সে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। সেনাবাহিনীকে ম্যানেজ করেই শেহবাজ শরীফ ক্ষমতায় রয়েছে বলে ইমরান খান দাবি করেছে। এবং ইমরান খান এটাও বলেছে যে
শেহবাজ শরীফ অনেক চেষ্টা করেছে আমাকে জেলখানায় 20 ইঞ্জেকশন দিয়ে মানে হার্ট অ্যাটাক করে মেরে ফেলার। তার গায়ে নাকি একটা বিষাক্ত ইঞ্জেকশনও পুশ করা হয়েছিল বলে ধারণা করছে ইমরান খান। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, ইমরান খান এছাড়া বলেছে তাকে কারাগারে 1 দিন 1 রাত রেস্টে রাখা হয় নাই, মানে ঘুমাতে পর্যন্ত দেয় নাই, বাথরুম ইউজ করতে দেয় নাই। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, ইমরান খানের সঙ্গে এরকম আচরণে ইমরান খান বলছে এর পাল্টা জবাব অবশ্যই দেব সময় আসলে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, ইমরান খান যে কথাটা বলল যে বর্তমান পাকিস্তানে স্বৈরাচারী শাসন শুরু হয়ে গেছে, পাকিস্তানের এই বর্তমান এই শাসন আমল বন্ধ করতে হবে, না হলে পাকিস্তানের জনগণ সামনে ভবিষ্যতে খুবই কষ্টের সম্মুখীন হতে পারে। ইমরান খানের এই মতামত নিয়ে আপনারা কি বলতে চান? আপনাদের মতামতটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।